Hello, I am Anup sir. Today we are going to continue our chapter number 14. How we do fall ill. हम बीमार क्यों पड़ते हैं. In the previous lecture we studied about the types of the disease. There are generally two types of the disease, acute disease and the recurrent disease, and another type of also the disease. First is non-infected disease and the infectious disease. Now we have to see the infectious agent. Which is the infectious agent? We know that in the previous lecture we have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into the few groups. This classification is based on the common characteristic between the different organisms that can cause disease are found in the wide range of such categories of the classification. Due to the some लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स की वजह से जो डिसीज होती है अप्रूव्ड होती है, टेक ओवर होती है ऑन बॉडी, दैट इज नोन एज द इन्फेक्शियस डिसीज. सम ऑफ देम इज वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, algae, protozoas and its extra. Some disease due to the multicellular organisms such as worms, different kinds. We have to see here there are different figures of the microorganisms. We have to see it is a picture of SARS virus. It is a picture of SARS virus. ये जो है 2003 में आया था SARS वायरस. ओके, लाइक दैट कोरोना वायरस था लेकिन इसका वैक्सीन जल्दी मिल गया था. ये भी चाइना से फ्लॉस हुआ था. देन नेक्स्ट वन इज लाइक दैट द हियर द पिक्चर इज द लेशमेनिया. हियर द पिक्चर इज द स्टाफिलोकी. It is picture of the trypanosoma, picture of the adult roundworm. Okay, now we have to see here the common example of disease caused by the virus. The common example of the disease caused by virus are the common cold, influenza, dengue fever and AIDS due to the retrovirus. Okay, and the coronavirus COVID-19 is also disease due to the virus COVID-19. Disease like typhoid, fever, cholera, tuberculosis and anthrax caused by the bacteria. टाइफॉइड है, फीवर है, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से. मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शियस द कॉज द डिफरेंट काइंड ऑफ द फंगी. जो स्किन डिसीज होती है इन्फेक्शन से, तो वो फंगी के इन्फेक्शन से होती है ड्यू टू द फंगिस. प्रोटोजोआ माइक्रोब्स कॉज मैनी फैमिलियर डिसीज. प्रोटोजोआ से भी बहुत सारी डिसीज होती है. वी हैव टू फैमिलियर सच एज द मलेरिया. मलेरिया जो है वो भी प्रोटोजोआ से होता है. विच प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम. विच इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उससे कौन सी डिसीज होती है? मलेरिया. एंड द काला आजार. All us have also come across intestinal worm infections as well as disease like the elephantiasis caused by the different species of the worm. जो elephantiasis होता है और डिसीज किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द worm. worm से कौन सी डिसीज होती है? एलिफेंटियासिस. हिंदी में इसको बोलते हैं हाथी पग, एलिफेंटियासिस. तो वाई इम्पोर्टेंट that the think these categories of the infectious agent? The answer is that these categories are important factors in the deciding what kind of the treatment to each. The member of each of the groups, virus, bacteria and so on, have many biological characteristics in common. तो ये जो इनको कैटेगरीज में क्यों डिवाइडेड किया गया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वी हैव टू गिव द ट्रीटमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ द डिसीज. So it is a subham to the biological characteristic is also common. All virus for example live inside the host cell. Okay, वायरस क्या करता है? होस्ट सेल पे लिव्स करता है. whereas bacteria very rarely do. बैक्टीरिया ये नहीं करता है. वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली. वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी आर मल्टीप्लाई वेरी क्विकली. सो ये फ्लो अप जल्दी होता है, ज़्यादा फास्ट होता है.
वाइल द वर्म मल्टीप्लाई वेरी स्लोली कंपेरिजन, जो वर्म्स होते हैं स्लोली ये डिसीज इंक्रीमेंट करती है, कौन सी वर्म डिसीज। टैक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरियाज आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन द वायरस इज वाइस वर्सा, जो बैक्टीरिया होते हैं एक दूसरे से क्लोजली होते हैं और वायरस होते हैं वाइस वर्सा। दिस मीन्स द मैनी इंपॉर्टेंट लाइट प्रोसेस द सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। बैक्टीरिया ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर ग्रुप होती है, लेकिन वायरस ग्रुप में ऐसा नहीं है। एज ए रिजल्ट ड्रग्स द ब्लॉक वन ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस of one member of the group is likely to be effective against the other members such as group, but the same drug will not work against the microbes belonging to the different groups। मतलब जो ड्रग्स है, जो आप मेडिसिन्स देते हो, तो किसके वो सबके ग्रुप्स अलग अलग हैं। जो वायरस में इफेक्ट करेगी, वायरल डिसीज होगी, तो उसमें बैक्टीरिया का जो आप डोज दोगे वो वर्क डन नहीं करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स है, लाइक दैट वायरस है, फंगी है, बैक्टीरिया है, वर्म्स है, प्रोटोजोआ है। तो जिस टाइप की डिसीज होगी आपको डोज भी उसी टाइप का देना होगा। एज एन रिजल्ट लेट अस द टेक एंटीबायोटिक्स। देखो हम एग्जांपल लेते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ओनली इफेक्ट ऑन द बैक्टीरियल डिसीज। जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरियल डिसीज पे ही इफेक्ट होती है, वर्क डन करती है, वायरस डिसीज पे वो वर्क डन नहीं करती है। They have commonly blocked biochemical pathways important for bacteria। तो बैक्टीरिया का जो बायोकेमिकल पाथवेस होता है मल्टीपल में इंक्रीमेंट का, उसको क्या करता है, ये रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल मेक द सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस टू बिल्ड द सेल वॉल। तो जो बहुत से बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो खुद की सेल वॉल प्रोड्यूस करते हैं। तो जो पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, फर्स्ट यही डिस्कवर हुई थी, इसको फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। जो पेनिसिलिन है ये क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरियल डिसीज में वर्कआउट करती है। इसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, इसको फर्स्ट फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। तो जो सेल वॉल बनाते हैं बैक्टीरिया, उसको क्या करता है, ये बनने से रोकता है एंड डाई इजीली उससे मार देता है। ह्यूमन सेल डू नॉट मेक द सेल वॉल। जो ह्यूमन सेल है वो सेल वॉल नहीं बनाता है। एनी वे सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एज इफेक्ट ऑन अस। पेनिसिलिन विल हैव टू इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज द प्रोसेस ऑफ द मेडिंग सेल वॉल। तो पेनिसिलिन वर्कआउट करती है, जो बैक्टीरिया सेल वॉल बनाता है वो हर एक डिसीज के लिए पेनिसिलिन वर्क डन करती है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट break down the cell wall of the bacteria. Similarly, many antibiotic work against many species of the bacteria rather than the simply working against one. But the virus do not use these pathways all. virus में ये work नहीं करेगी, and that is the reason why the antibiotics not work against the virus infectious. We have common cold, taking antibiotics does reduce the severity or during the time period disease. However, if you also get the bacterial infection along with the viral cold, taking the antibiotics to help, even then the antibiotic will work done against to the bacterial part of the infection, not the viral infectious. ओके, जो एंटीबायोटिक डोज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए और बैक्टीरियल डिसीज के लिए वर्क डन करता है, बाकी वायरल डिसीज के लिए नहीं करता है। ओके, नाउ वी हैव टू सी मीन्स ऑफ द स्प्रेड। हाउ डू इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड। जो इन्फेक्टेड डिसीज है वो स्प्रेड कैसे होती है। तो मैनी माइक्रोब्स एजेंट कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू सम एल्स इन द वेराइटी ऑफ वेस। जो अफेक्टेड पर्सन से है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसके ऊपर जाता है और उस पर इफेक्ट करता है। इन अदर वर्ड्स दे कैन बी communicated and so are also called the communicable disease, such causing the
डिसीज कॉजिंग द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर, जो माइक्रोब्स है एयर से भी स्प्रेड हो रहे हैं. दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय द इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ. जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कोल्ड है, उसको खांसता है, स्नीज करता है, छींकता है, तो भी वो एयर में उसके ड्रॉपलेट्स जाते हैं और इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन है जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उस पर इफेक्ट करता है. ठीक है, वायरस जाता है. जैसे कोरोना वायरस में क्या है, मास्क पहनने को बोला है. मास्क इज कंपलसरी फॉर एवरी हेल्दी और इन्फेक्टेड पर्सन बोथ. वाई? बिकॉज ऑफ व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन इज स्नीजिंग और कफिंग कोल्ड, देन droplets of their saliva present in the air and it goes to the healthy person and they are also infected. The examples such as the disease spread through the air are the common cold, pneumonia and tuberculosis and COVID-19 coronavirus. We all have had to the experience of sitting near someone suffering from the cold and catching it ourselves. Obviously, the more crowded our living conditions are, more likely such as the airborne disease the spreads. जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह में भी, क्राउडेड प्लेस में भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. Now we have to see here disease can also spread through the water से भी स्प्रेड होती है. This occurs if the excreta from someone suffering from the infectious gut disease such as cholera जो है वो वाटर इन्फेक्शन से होता है. वाटर इन्फेक्टेड होता है, उसको ड्रिंक करता है तो उससे इन्फेक्शन हेल्दी पर्सन में जाता है. गेट मिक्सड विद द ड्रिंकिंग वाटर यूज टू द पीपल लिविंग नियर बाय द कोलेरा कॉजिंग द माइक्रोब्स विल एंटर हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर दे ड्रिंक द कॉज डिसीज इन देम. वही मैंने बताया कि हेल्दी पर्सन के अंदर जाता है जब वो ड्रिंक करता है. सच डिसीज आर मच मोर लाइकली द स्प्रेड द एब्सेंस ऑफ द सेफ सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. द सेक्सुअल एक्ट is one of the closest physical contact two people can have with each other. Not surprisingly, there are microbial infections such as the syphilis and the AIDS are the transmitted sexual contact from the partner. It is also due to the contacts. जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कौन सी डिसीज होती है, एड्स होती है, सिफिलिस होती है और गोनेरिया होती है. दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. कॉजल द फिजिकल कॉन्टैक्ट इंक्लूड द हैंडशेक्स और हग्स और स्पोर्ट्स. तो हैंडशेक करने से, हग्स करने से, फिजिकल अटैचमेंट में आने से ये डिसीज नहीं होती है. ये सेक्सुअली अटैचमेंट में आने से ये डिसीज होती है. कौन कौन सी? गोनेरिया, syphilis and HIV AIDS. By any other ways which is a touch each other socially other than the sexually contact the virus causing the AIDS HIV human immunovirus. What is the full form of the AIDS? Full form of the AIDS is the acquired human deficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. What is the full form of HIV? Human immunovirus. Human immunovirus also spread through the blood to blood contact with the infected pupil or from an infected mother to her baby during the pregnancy or through the breastfeeding. तो ये जो एड्स डिसीज है, HIV है, अगर मदर को है, मदर से उसके बेबी में भी, चाइल्ड में भी स्प्रेड हो सकता है ड्यू टू द ब्रेस्ट फीडिंग और pregnancy. We live in our environment that the full of the many other creatures apart from the us. It is the inevitable that the many diseases will be transmitted by other animals. These animals carry the infected agent from the sick person to the another potential host. These animals are thus the intermediaries and called the vectors. और some other vectors भी हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं. We have to see here it is the sexual contact means AIDS
गोनेरिया एंड सिपिलिस जैसी डिसीज होगी इससे। इट इज ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक दैट कोरोना वायरस कोविड-19 जैसे डिसीज होगी। इट इज ए इन्फेक्टेड पर्सन ड्रिंकिंग टी और वाटर, उससे भी डिसीज हो रही है। मॉस्किटो के जो एनाफ्लिस मॉस्किटो है उसके बाइट करने से भी डिसीज हो रही है, मलेरिया हो रहा है। रेविड एनिमल्स है, जिसको रेविड है वो एनिमल से भी रेविड हो रहा है, ठीक है। हेल्दी पर्सन में ये सारे डिसीज आ रहे हैं। इट इज़ द मैनी वेज ऑफ द ट्रांसमिटेड डिसीज इन्फेक्टेड पर्सन टू द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन। We have to seen here in the different types of the figure also. The commonest vectors we all know are mosquitoes. In many species of mosquitoes, the female need highly nutritious food in the form the blood in order the able to the mature eggs. Mosquitoes feed on many warm-blooded animals, included us. This way they can the transfer disease from the person to the other person. जो मॉस्किटो जो होता है तो क्या करता है, जो वन पर्सन है उसका ब्लड लेता है और अदर पर्सन को इन्फेक्टेड करता है। तो मॉस्किटो से भी डिसीज, फ्लाई से भी डिसीज स्प्रेड होती है, ट्रांसमिटेड होती है। देयर आर डिफरेंट वेज टू द ट्रांसमिटेड द डिसीज और स्प्रेड ऑफ द डिसीज। टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज, इन्फेक्टेड डिसीज एंड द which is called the infected disease and how it flow. If anybody query during according to the infected disease, which is called the infected disease, types of the infected disease, which is the factor of the infected disease, then ask me in comment box. Have a nice day. In the next lecture we study about the organ specific and tissue specific manifestations. Have a nice day.